So good morning, students. Welcome you in class of IP Informatic Practices. So far we have discussed so many things about dictionaries, and in yesterday's class, or you can say in the previous class, I have told you how you can create a dictionary with user input, and I have told you about two functions, dot keys and dot values. Now we are going to start a very important topic of dictionaries, and I have also told you how you can create a dictionary in different manner. In different manner, I mean that you can create a dictionary by using dict constructor. In that dict constructor, you were using sometimes equals to sign, sometimes colon sign, and yes, I have also told you about zip function. Zip function is what you are doing is it helps us to combine two lists simultaneously. Okay, so if we want to adjust or insert two lists, or we can say that using two lists and we want to create a dictionary, then we use the zip function. Okay, so there are the several kind of methods in which we can create dictionary. Now we are going to understand what are the operations of dictionary and what is nesting dictionary. So first of all, we will understand what is the operations of dictionary. Operations mean that how we will add elements, how we will add elements, how we will update elements in our dictionaries. Then I will tell you how you can delete elements. So these three will be referred as the operations of dictionary. Okay. First, how we can add elements, how we can update, and how we can delete the elements in our dictionary. So starting from adding the elements. Okay. Adding elements in dictionary. How you can add an element in a dictionary? Supposingly we have created a dictionary named X. Dictionary कैसे create करते हैं? By using the curly braces. And I have assigned A to 10, B to 20, and C to, let's say, 30. Okay, this is my dictionary, and I have precisely defined its key corresponding to its value. Once again, I have defined its key and its value, key and its value. But how we can add the element explicitly? Okay, so if we want to add one more key with its element, so how we will do? Okay, कीज एक्सेस करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. सपोजिंगली आई वांट टू ऐड डी. ओके, डी के अंदर मुझे क्या प्रोवाइड करना है? 40. सो दिस हैज टू बी डन. You write D here, you will put quotes. Okay, so output will consist A, B, C as well as D to its 40. Getting my point? How you can insert, how you can add element in dictionary. If you have created a dictionary, then it's good. If you didn't created a dictionary and didn't assign the value of it, the keys of it, so you can assign it like this. Now taking to the next scenario. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक y नाम की डिक्शनरी बना रखी है, एम्प्टी डिक्शनरी. यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई नहीं की ना कोई वैल्यू डाल रखी है. तो आपने क्या करेंगे? y का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट किसके काम आएगा? की असाइन करने के काम आएगा. सपोजिंगली मैं यहाँ पर इसको की असाइन कर रहा हूँ 1, और इसके अंदर मैंने इसको प्रोवाइड किया ABC. फिर y2 के अंदर मैंने डिसाइड किया DEF. y3 साइन मैंने किया यहाँ पर GHI. ठीक है, तो ये अब मेरी डिक्शनरी कैसे, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा डिक्शनरी को, तो मेरे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 1 to ABC, comma 2 to DEF and 3 to GHI. समझ में आ गई बात?
आप एक डिक्शनरी एम्प्टी क्रिएट करिए, उसके बाद आप एक्सप्लिसिटली इनका डेटा और उसकी की असाइन कर सकते हो। और अगर आपने पहले से कोई डिक्शनरी क्रिएट कर सकती है कर रखी है और उसके बाद भी आपको कुछ और नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं विद इट्स की, सो यू कैन आल्सो add like this. Okay, I hope you have understood how you can add the elements. Everyone? Okay. Now we will understand how we can update elements. Update elements. Okay. Supposingly this is my dictionary. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि हमें जल्दी से समझ में आ जाए। यही बेसिक एग्जांपल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। ठीक है, ये मेरी पहले से बनी हुई डिक्शनरी है या मैंने अभी अभी बना दी। ठीक है, अब सपोजिंगली मुझे याद आया कि मुझे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 20 असाइन नहीं करना था, मुझे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना था, 25 असाइन करना था। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? ठीक है, तो इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, अपडेट करना। हाउ वी विल अपडेट इट? तो हम अपडेट किसके थ्रू करेंगे, कीज के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये रही मेरी डिक्शनरी, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर मैंने इसका की दिया, की क्या है 2, की इक्वल्स टू में मैंने क्या लिख दिया 25। ओके, जैसे ही मैंने इसके आगे 25 लिखा, यहाँ पर जो 20 था अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 25, यानी कि हमने वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट हम किसके थ्रू करेंगे, हमेशा की के थ्रू करेंगे। यहाँ पर मैंने उसकी की मेंशन की और यहाँ पर मैंने उसकी नई अपडेटेड वैल्यू इंसर्ट करवा दी। Got my point, students, or not? Give your consent. Hurry up. Give your consent, please. Easy? Great, great, great. Yes. Now, if you will talk about deleting in dictionary, so deleting in dictionary, not deleting in is everything, in anything. We found is very easy. Why? Because creating needs some time. But if you will talk about deleting, then deleting do not take many time, है ना? ज़्यादा टाइम नहीं लगाती deleting करना, यानी कि delete करना comparatively ज़्यादा आसान है। तो ये आप अपने delete करते हैं, ठीक है? delete है, बहुत सिंपल है। जो भी एलिमेंट्स आपको डिलीट करना है उसकी की को पकड़ लीजिए, व्हाट इट्स की, जो भी की है, जिस डेटा एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हो उसकी की को एक्सेस करिए और साथ में कौन सा कीवर्ड यूज करिए, del। दैट्स इट। del कीवर्ड let you remove the element or remove the key to its value. It will remove what, with the help of del keyword, del, del keyword. Okay, supposingly I have a dictionary named Z, and in which, let's say, I have assigned 1 to science, 2 to arts, 3 to commerce, and 4 to others. This is my basic dictionary. Okay, so now I want to delete this others. I don't want to have an option which is saying that others. So what I will do, I will call my dictionary. This is my dictionary. I will call its key. This is its key, and I will put del keyword. That's it. So it will delete this 4 key. If 4 key will be deleted, then its value will also be deleted, and you will find that 1 to science, 2 to arts, and 3 to commerce. That's it. So this is how you can update, delete, or add elements or add key elements in your dictionary. Okay, which keyword you need to mention? Only del, del. Got my point, students? So after discussing operations of dictionary, we will now understand what is the nesting dictionary. Yes, hope you know the term nesting. Nesting means one into another. That's it. Okay.
Supposingly you have a dictionary. In that dictionary you still want to insert one more dictionary, then it will be referred as nesting of dictionaries. Okay, जब हम एक डिक्शनरी में एक से ज्यादा डिक्शनरी वापस स्टोर कराना चाहते हैं, उसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड डिक्शनरी. ठीक है, वन डिक्शनरी इनटू अनदर डिक्शनरी. दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग डिक्शनरी. ये तो हमें टर्म वाइज तो पता चल गया. अब इसको हम एक्सेस कैसे करें? देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि की जो है वो क्या है? इम्यूटेबल है. यानी कि जो की है वो तो कभी चेंज होगी नहीं, यानी कि की चेंज नहीं होगी, और की जो है वो यूनिक इंस्टेंस रहेगा. यू कांट रिपीट इट एंड यू कांट यूज की एज अ म्यूटेबल डेटा टाइप. वैल्यूज जो है वो म्यूटेबल है. वैल्यूज जो है वो क्या है? म्यूटेबल. यानी कि वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, कीज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी रिपीट भी कर सकते हो और रिपीट नहीं कर सकते कीज को, और वैल्यू को आप रिपीट कर सकते हो. तो यानी कि जब हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी इंसर्ट कराएंगे, तो हमें जो नई डिक्शनरी जो हम इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू के साइड में करेंगे. वी विल नॉट इंसर्ट अ न्यू डिक्शनरी एज की, बिकॉज वी कांट डू इट. व्हाई वी कांट डू इट? बिकॉज वी कैन नॉट इंटरप्ट की. समझ में आ रही है बात? जब हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, सपोजिंगली ये मेरी डिक्शनरी है, इसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी इंसर्ट कर दी, तो यहाँ पर जो है मैं एज अ की इसको नहीं, एज अ वैल्यू ही इंसर्ट करूंगा. ये बात जानना बहुत जरूरी है. ये किसको क्लियर है? यानी कि हम कौन से प्लेस पे इसको यूज करेंगे? जो नई डिक्शनरी आएगी उसको हम वैल्यू के प्लेस पर यूज करेंगे. ज्यादा हार्ड नहीं है, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है, सपोज वी हैव अ डिक्शनरी नेम्ड एम्प्लॉय. ठीक है, नेम अजय, सैलरी 10,000, एज लेट्स से 20. ये मेरी एक सिंपल डिक्शनरी है. सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूं. तो मैंने क्या बनाया? एक, वापस से देखिए, एम्प्लॉय, वही सेम की सेम डिक्शनरी, नेम तो मेरा वही है. ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? कॉलन के प्लेस पे मैं एक और डिक्शनरी ऐड कर रहा हूं. समझ में आई बात? कॉलन के प्लेस पे मैं एक और डिक्शनरी ऐड कर रहा हूं, जिसमें अजय, 10, भावना टू 20. देखो, ये इसकी क्या हो गई? की. और ये जो नई डिक्शनरी आई है ये क्या होगी? इसकी वैल्यू. और ये बात समझ में? तो ये एक डिक्शनरी खत्म हुई है, और ये एक इसका डिक्शनरी का पैरेंथेसिस लगेगा, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगेगा. तो एक डिक्शनरी के अंदर मैंने जब दूसरी डिक्शनरी पास की, तो इसको मैंने क्या बोला? नेस्टिंग डिक्शनरी. ये किस किस को आया समझ? So after discussing the nesting dictionary, now we will discuss checking for existence of a key. As the name is suggesting that we are going to focus that we will check, indeed, we will check in our dictionary that that sort of dictionary's key is present in that dictionary or not. Okay, supposingly I want to check that in my square dictionary, will there be any kind of 5, 6 or 7 named key available or not? If I am checking it, then it will be known as checking for existence of a key. So we can check by in keyword and by using not in. बहुत सिंपल से दो कीवर्ड्स. इन का मतलब है कि ये जब ट्रू रिटर्न करेगा कि जब वहां पर वो एलिमेंट्स होंगे. नॉट इन ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वहां पर एलिमेंट्स नहीं होंगे. सिंपल सी बात है, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं. ये तब ट्रू करेगा जब वैल्यू नहीं होगी, नहीं होगी तब ट्रू करेगा. ठीक है, देखो
अब नॉट इन कैसे काम करेगा, ठीक है, मैं नॉट इन से पूछ रहा हूं क्या यहाँ पर 5 की है। मैंने कहा कि क्या यहाँ पर 5 नंबर की है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फटाफट से मेरे को बताओ। ट्रू के लिए थम्स अप, फॉल्स के लिए थम्स डाउन, क्या आउटपुट आएगा इसका, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? बिल्कुल ट्रू आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, 5 नाम की यहाँ पर नहीं है, देन इट विल रिटर्न ट्रू। ये तो बात होगी नॉट इन की। अब बात करते हैं इन की। क्या यहाँ पर फॉर नाम की है? हाँ है, देन इट विल रिटर्न एज ट्रू। एंड इफ यू विल चेक फॉर 5 देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब देखिए नॉट इन का केस वापस से डिस्कस करते हैं। क्या मेरे इस डिक्शनरी में टू नाम की है? क्या की नहीं है? नहीं है, क्या है बताओ? टू नाम की है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट इन का मीनिंग यही है कि ये जब ट्रू करेगा जब यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए इसका फिर एग्जांपल करते हैं फटाफट से। नाउ वी हैव अ डिक्शनरी, okay, now I will check 3 in A. What will be output? Output will be true. Got my point? Now I will ask 6 not in A. Then what will be my output? True. बिल्कुल, क्योंकि 6 नाम की जो की है वो ए में नहीं है। चलिए अब फॉल्स पार्ट को देख लेते हैं। ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ 6 इन ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 6 नाम की यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 2 नॉट इन ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। सो दिस विल बी माय चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? So now we will discuss pretty printing in a dictionary. As once again name is suggesting that we are going to focus on printing, and from which function we focus on printing or we do the printing is print function. Print function के थ्रू हम प्रिंट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अपने को क्या करना है कि डिक्शनरी को प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास मार्क्स नाम की एक डिक्शनरी, इसमें ए के आ रखे हैं 45, दिस इज आउट ऑफ 50, लेट्स। बी के आ रखे हैं लेट्स से 50 आउट ऑफ 50, 6 के 48। ओके, तो ये मेरी एक डिक्शनरी है मार्क्स नाम। अब मुझे ये प्रिंट कराना है स्क्रीन पर कि विपुल हैज स्कोर्ड 45 मार्क्स। मुझे प्रिंट ये कराना है स्क्रीन पे कि विपुल हैज स्कोर्ड 45 मार्क्स। तो मैं इसको कैसे प्रिंट कराऊंगा? सिंपल सी बात है, किसको, इसका मतलब क्या है? प्रिटी प्रिंटिंग है, यानी कि यहाँ पर हम अब डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, बट डिक्शनरी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? की। ठीक है, तो चलिए यही वाला एग्जांपल करके देखते हैं। विपुल के 45 मार्क्स लाते हैं, तो अपने क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, प्रिंट स्टेटमेंट को बुलाएंगे कि भैया जी आओ और प्रिंट करो। क्या लिखेंगे? विपुल हैज स्कोर्ड, बट मैं चाहता हूं जो डेटा है वो मेरा कहां से आए? इस डिक्शनरी में से। तो मैंने केवल इतना सा स्ट्रिंग लिखा। अब मुझे डेटा कहां से चाहिए? डिक्शनरी का डेटा चाहिए, और डिक्शनरी का डेटा मुझे कौन ला के देगा? इसकी की। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा मार्क्स, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा ए। ठीक है,
इतना हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, ये बात आई समझ में। जो भी स्ट्रिंग होता है वो हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और बट यहाँ पर मुझे 45 चाहिए था फ्रॉम दैट डिक्शनरी, तो मैंने ए को बुलाया, ए ने कहा कि ठीक है मैं आपको 45 दे रहा हूँ। तो ओवरऑल जो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, विपुल हैज स्कोर्ड 45। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 45 मार्क्स। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर सीधा सीधा 45 ही लिख देते हैं। नहीं, अपने को तो डेटाबेस में से उठाना है ना, अपने को एक कोई पर्टिकुलर फाइल बनी हुई है उसमें से वैल्यूज उठानी है। तो उसमें से वैल्यू उठाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, डिक्शनरी को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, वो है बाय यूजिंग कीज। बाय यूजिंग कीज मैंने उसको प्रिंट करा दिया। समझ में आया होगा, ये तो बहुत ईजी है। Okay, so I hope you have understood how you can do the pretty printing in a dictionary. So from tomorrow onwards, or you can say in the upcoming classes, I will bind up this chapter by completing dictionary functions and methods, and I will do the practical implementation of this pretty printing, update, insertion, and nesting dictionary also in the upcoming classes. Okay, so I hope that you have enjoyed this session, and please take care of yourself.